Good evening, friends. We will wait for 5 minutes and we will start the meeting sharp at 8 p.m. Hey, good evening, Gaurav. All right, I think we can start and let others join. They will join at around maybe like 8 p.m. or 8:05 p.m. But yes, all those guys who has joined, I hope the document which I have shared with everyone regarding the installations. So I hope you have gone through the documents, and if not, so please open that document and just have those steps in front of you so that it will be ready on your side. And then, because as we are learning Python, then machine learning, so the packages, the installations, that is the first step that everyone should have installed all these packages in their system. And I assume ki everyone has their personal laptop and personal system, so that we will be having this, the practical, what are the practicals we will be doing. You guys are doing the same thing and even explore on your systems, the local systems, so that it will be a kind of active learning from your side as well. And yeah, we will start. Anyway, this meeting is getting recorded. So those who हेलो missed the initial part will. गौरव। Yes, am I audible? यस यू आर ऑडिबल। हम Yes, लोग को यही यही सेशन में गिट का भी मतलब वो भी लगेगा ना हम लोग का आगे जाके sure. तो। So yeah, at the end we will do that, because what is the priority right now for today's session is our startup, like starting with Python, then the VS Code and all. If you have that setup, that is good. But for others, let's see. And at the end, we will have a short discussion on GitHub. I will tell you how to create repository, then uh, how to clone it on your local system. And if there is something you want to push, you can do that as well. So yeah, at the end, I will definitely tell it. But as I said, priority will be the very first stage of Python installation. So guys, I hope I am audible and my screen is visible to you. Yes, yes, Gaurav. Okay, thank you. So I have shared this document with you, Right, and everyone has access to this document. I hope correct. you tried this part at your site, and I'm not sure how many of you are very new to Python, and if you are, then you can even let me know. And if like rest of the guys you already know the Python wala part and you have those installed in your system, then that is like the great thing. Rest of the guys, if you are new, please let me know, and then actually on this system I have done all these things because as I said yeah, the earlier batch which we have trained and which we are doing, so this step is already done, but I will just explain what you can do at your side. And even in this session, if you want, you can start doing these things, and in between if there is an error you can share your screen, no worries, we will discuss on that. But initially I will be giving you the idea on this, okay, what are the required packages, and what are the other alternatives that we can think of, and what are the like available platforms where we can execute all these practicals and all. So very first
is the installation of Python. So guys, like, did you try on the installation? If yes, then if it is done, then say कि yes, it is done. If Yes, it is done done, very at good, my Arun. my Yeah, system. yeah. Okay, okay. So here I just want to tell you कि if you have installed this, then how we can open the let's say Python. So Python, to run the Python at your system, there is a simple Python command. Aditya is saying yes, it is done. That is good. And rest of the guys, if you have not installed this, please do it. And for installation, these are the very straightforward steps where to go. Python.org is the legitimate website where you can take the Python packages and just install it on your system. So downloadable this .exe file, you can extract it. This is very important. Add Python to path. So for that, just you have to go here. And if you are using Windows, even I have covered the this like the steps for Mac OS as well. Right now, this is Windows. So I think, yeah, installation you will do it quickly, I know. But this path variable, make sure you will be editing the path variable. Right now, this is disabled at my end. But yes, it's just like the temporary part. Like even today, when I set up that TensorFlow on my system now. It was editable, but right now it is disabled. No worries. But at your side, guys, when you will be clicking here on path, you will get the edit wala option. Just go there and add the path variable. Whatever the path, your exe file is there now. Just take that path and then add it here. Okay, here. Right now, as I said, this is not editable from my side. The हमें ऊपर वाले में करना पड़ेगा गौरव, ऊपर जो पाथ है ना उसको सेलेक्ट Yes, करना yes, पड़ेगा और उसके yes, बाद yes. System variable, yes, you can do it in system variable as well. But ओके let's say if ओके it is not, you can do it here as well on user's end. So no worries. But mostly, like, yeah, system variable, you can also do that. And this user variable, you can do here as well. So yes, here also, like if you want, and if there are some admin permission here, then if you are not able to add the path over here, so there is another option to add for user variables. Just go and add the path. Okay. So that is the one thing, like you just have to follow. Otherwise, it is a straightforward installation that you can do it on your system. And still, if you are facing any kind of issues, uh, you can just put it on group. Maybe other guys will help in that case. And even not, then you can reach out to me. We will discuss and we will get it solved. But this should be done. Okay. Then Jupyter Notebook, guys. So Jupyter Notebook, I hope you will be installing the latest version of Jupyter Notebook. Okay, these are the steps. Do it. And now in chat, please let me know how many of you have already installed the Jupyter Notebook on your system. आई हैव इंस्टॉल्ड इट Good. Rest of the guys, Me too. yes, done. Yeah. Great. Okay. So this is the second, and installation is done. I will tell you how to execute it. But if there is any issue, the same thing. Yeah, each and everything is mentioned here. You have to just execute this command to install the Jupyter Notebook. I have already done it. So I will just open it and show it how it is. Then VS Code is the very legitimate editor where we prefer actually throughout our class. Even to execute the TensorFlows related libraries and all, we create the virtual environments and we do it there. So this is most useful editor. You can do it like to handle the large projects and to push to create like Docker container and all. Everything is handled in VS Code. So this is very good lightweight platform. Try it. And I hope most of you guys, you are using VS Code. All right. So these are the things that needs to, like, you guys need to have in your machine. Let me now explain it one by one, and then we will proceed with the rest of the stuff. Okay. Here are the links, helpful links. You can just go and execute it, and whatever the things you can explore in more like deeply if you want. Okay. So let me first open our Jupyter Notebook. So to open the Jupyter Notebook, what do we do generally?
just go to command prompt. You can go it anyway, like PowerShell if you have. Here I will just execute this command, Jupyter Notebook. Okay, simply execute it. It will open the Jupyter Notebook on your browser. It will take some time. Don't worry about it. Yeah, I know, like there are few 2-3 people who are from the first batch and they have already like done these things. But for the rest of the guys now, if there is any doubt in between, you can ask me what is this, and uh, like how we'll be proceeding with this and what, and each and everything you can ask. We will discuss in more deeper. Okay. If you have any issues or if it is not clear what we are doing, please tell me know, like let me know. And also how I executed this Jupyter command and all, you can ask me, because today is the very first day and I know ki maybe like which packages and what packages and how we use. So each and everything you can ask me, guys. Feel free to ask. Okay. Bharat sir, Yes. just a question here. Yeah. So basically, what is the Jupyter? It's a framework like the PHP which you have for the Python. So Huh. is that a framework or what? Yeah. So like the editor, like in editor, we execute our code, right? Our like executable files, the programs, the Python file. They like mostly execute here the Python notebooks. Okay, that Python notebooks, I will explain what is it, and then you will come to know. Okay, this is nothing but the kind of terminal. You can say it as a terminal, and this terminal is running. So this is nothing but the environment on your local, which helps to execute the Jupyter notebook files, like Python notebook files. So Python notebook, I will explain what is Python notebook, and then you will come to know. Okay, this is kind of terminal commands we use actually. So instead of the CLI, we are going to execute our code here in the Jupyter. Correct. Like most of the code, Python code, like importing the packages, libraries, each and everything, like we use the Jupyter notebook. This is very like old Jupyter notebook, but these things are properly handled in VS Code, and we will come there. But you guys should have the idea कि व्हाट इज जुपिटर नोटबुक, मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई जुपिटर नोटबुक भी क्या है। अगर लोकली चलो हमको कुछ करना है तो जुपिटर नोटबुक, ये कर्नल वगैरह, केरनेल जो बोलते हैं ना, वो सब आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कैसे क्या। तो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज एज आई सेड, दिस इज इनिशियली वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। सो यस, so see here it says ki running. If there is running, it will tell you, like it will show the files and each and everything here. Terminals are running, kernels are running. What is kernel? So kernel is nothing but the engine which help you guys, like which helps to execute the Python commands. And those Python commands, those the code, the Jupyter notebook code, each and everything is doable, the executable in Shell. So let me show what is that Shell and how it is. So let me create, okay, initial step. So you can go and create a file. Okay. So generally, as I said, notebook. So notebook contains the cells. So let me create the notebook over here. Okay. I'm creating a notebook. Initially, it's untitled notebook. Then you can rename it as per your convenient. So it is showing me the kernel, and this is TNF ENV. So actually, like in my earlier batch, the batch which is already going on, we are learning TensorFlow. So this environment was created for that specific reason. So as we are from scratch, so I will go to another environment like this. Okay, this is another environment, that is kernel, like kernel, we can say the engine. I'm opening that. Okay, so I'm selecting this kernel, and yes. So now whatever we are executing, the code and all, it is running under this kernel. Okay, as I said, it's a engine which runs these cells. So you can see one cell is there. Okay, this is one cell. और यहाँ पे ये सब दिख रहा है आपको, आप इसको देख सकते हो। डिलीट, तो आप डिलीट अगर करोगे तो सेल डिलीट हो जाएगा। आपको और एक सेल ऐड करना है, आप और एक सेल ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऊपर करना है, ये ऊपर ऐड हुआ, मतलब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे क्लिक करूँ तो दिस सेल इज गेटिंग एडेड अपर साइड। ओके, अगर इसी सेल को मूव करना है नीचे तो एरो, यू नो, लाइक आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। क्रिएट डुप्लीकेट सेल, अगर यहाँ पे कुछ लिखा है तो आप यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हो।
ठीक है, जब जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ये सब चीजें आपकी साइड से करो प्रैक्टिकली। तो एज आई सेड कि दिस इज वन टर्म, ये टर्मिनल जैसा एक एक सेल है। इस सेल में आप जो चाहे वो कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो इसमें। फॉर एग्जाम्पल कि अभी इस जुपिटर नोटबुक के इंजन में अगर मैं एक नॉर्मल वाला अपना प्रिंट कमांड लिखूं, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट, तो सिंटैक्स भी आप पाइथन का धीरे धीरे यहाँ पे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप समझते जाओगे। ठीक है, तो आई एम जस्ट सेइंग हेलो, ओके, सिर्फ हेलो, एंड व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कंट्रोल एंटर, मैं कंट्रोल एंटर यहां से दबाऊंगा तो देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया हेलो। ठीक है, अगर मैं इसी सेल में हूं, अगर आपको इसको एग्जीक्यूट करना है तो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन रन दिस सेल। ठीक है, आप यहाँ पे रन दिस सेल करोगे तो रन हो गया, हेलो आ गया। तो दिस इज अ वेरी फर्स्ट के वेलकम वगैरह आप लिख सकते हो, बट द स्टार्ट ऑफ आवर पाइथन कोड। ठीक है, यहाँ से आप पाइथन का कोई भी ये जो भी एग्जीक्यूशन है वो ये सेल बाय सेल कर सकते हो। तो गाइस ये जो है ये आपको स्टॉप करेगा अगर आपने कुछ लंबा कोड कुछ लूप में घुमाया है एंड यू वांट टू इंटरप्ट, तो यहाँ पे अगर आप करते हो तो ये इंटरप्ट हो जाएगा आपका कर्नल। तो इंटरप्ट हो गया मतलब जो भी एग्जीक्यूशन चल रहा था उसको आप स्टॉप कर सकते हो इससे। ठीक है, ये बाकी के जो भी चीजें हैं आप जब खुद से करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, देन यू कैन एक्सप्लोर ऑल दिस थिंग्स। ओके गाइस, बट वॉट एवर द नेसेसरी थिंग्स आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू, ओके, एंड देन यू आर फ्री टू एक्सप्लोर as per your convenience. The practice from your side is very important. मैं जैसे इसको फर्स्ट 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 नोटबुक करके मैं दे देता हूँ यार। तो गाइज ये है अपना जुपिटर नोटबुक। मेक श्योर के यू इंस्टॉल एंड इंस्टॉलेशन करो, आप आज रात में करो। ठीक है, इंस्टॉलेशन जैसे ही जुपिटर नोटबुक एग्जीक्यूट होता है आपको फिर अच्छा लगेगा, ये कुछ तो है भाई, इसको एग्जीक्यूट करके देखो और कोड वन बाय वन पाइथन का, तो दिस इज वेरी गुड। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे होता है कोड, तो व्हाट इट वाज द कोड, हाँ, ये मार्कडाउन होता है, मार्कडाउन। अगर मैं मार्कडाउन पे क्लिक करूंगा तो क्या हो गया, जिस सेल पे मैं था ना वो देखो, अभी दिस इज नॉट अ टर्मिनल, नॉट अ सेल, मीन्स नॉट अ टर्मिनल सेल। तो यहाँ पे आप जो करोगे अभी ये HTML जैसे काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिखूंगा, वेलकम डियर लर्नर्स, ठीक है, अगर तो ये दिस इज नॉट कोड, तो इसमें कुछ एरर भी नहीं आएगा, सिर्फ ये एग्जीक्यूट हो गया, इसमें कुछ एरर भी नहीं आया, बिकॉज दिस इज मार्कडाउन गाइस, ये मार्कडाउन है। तो इसमें आप जस्ट एक मतलब ये क्यों लगता है मार्कडाउन, जब भी आप कुछ कुछ नोट्स वगैरह जो भी लिखोगे, मतलब जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो अपना EDA होता है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। सो वॉट एवर यू आर लर्निंग फ्रॉम द डेटा ना, यू हैव टू नोट यूर ऑब्जर्वेशंस, आपको आपके ऑब्जर्वेशंस लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे ये मार्कडाउन काम में आता है। ओके, सो गाइज अभी मैं ये मार्कडाउन में, हाँ ठीक है, जैसे हम ये रिपोर्ट्स किसी को शेयर करते हैं ना, अपर मैनेजमेंट जो भी अपना ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपका डिटेल एनालिसिस है, जैसे कि एनालिस्ट लोग इसको बहुत यूज करते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं ना, डेटा एनालिस्ट, तो वो उनका जो भी ऑब्जर्वेशन रहता है उसको फिर वो नोट डाउन करके फिर वो रिजल्ट्स वगैरह उसका जो भी आजम जो भी उन्होंने देखा है जो भी आया है वो EDA करके वो सब लिखते हैं यहाँ पे। तो ये मार्कडाउन आप ध्यान में रखो कैसे होता है मार्कडाउन। जैसे ही मैं अगर इसको यहाँ से कोड कर दूंगा तो इट विल बी कोड, और मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा, देखो कंट्रोल एंटर दबाता हूँ तो इट विल शो एरर। ओके, वाई एरर, बिकॉज नाउ इट इज कंसिडरिंग इट एज अ कोड। अगर इसको मुझे एरर हटाना है, जस्ट मुझे लिखना था, तो आई एम जस्ट डूइंग इट लाइक दिस। सो दिस इज, मैंने कंट्रोल एंटर किया, नो एरर आया। तो इसको मुझे जस्ट मैं ऊपर लेके जाता हूँ, इसको ऊपर लेने के लिए मैंने क्या बोला, एक अप एरो करोगे आप ऊपर चला जाएगा। तो जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, मतलब ये कैसे इसका ब्यूटी क्या है, वो कैसे ब्यूटीफुली आप डिजाइन कर सकते हो आपके इसको। तो देखो मैं यहाँ से एक सिंबल उठाता हूँ, जस्ट एक सिंबल, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करके उस सिंबल को अगर मैं यहाँ पे डालूंगा, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यू विल सी दिस सिंबल। तो दिस वर्क एज ए HTML कोड गाइस। ठीक है, और अगर इसको मुझे बड़ा करना है तो यू जस्ट हैव टू ऐड द ये हैश, हैश अगर डालोगे ना आप, ठीक है, हैश डालो और इसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, 1 सेकेंड, हैश डालो इसको और इसको एग्जीक्यूट करो, देखो बड़ा हो गया। और जैसे हैश डालते जाओगे वो उसके हिसाब से साइज उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जस्ट आपका नोटबुक जो है वो प्रॉपर और प्रोफेशनल दिखने के लिए इसका आप जैसे चाहे उसका वैसा यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट। देखो यहाँ पे मैं इस सेल में हूँ, ठीक है, एंड गाइस ये मैं जस्ट इनिशियली है इसलिए मैं आपको प्रॉपर सब वन टाइम बता रहा हूँ।
जैसे आप उसका प्रैक्टिस करोगे और जैसे मैं जब हम नोटबुक्स और प्रैक्टिकली रन करेंगे ना, तो मैं ये विदाउट आपको बताए मैं इस पे काम करूंगा, तो जस्ट आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए भाई ये इसके दबाया फिर मैं, क्योंकि मैं यहाँ से मेरे साइड से करूंगा ना, तो कैसे एग्जीक्यूट किया वगैरह उसमें। तो और मैं अगर मुझे एक सेल ऐड करना है तो व्हाट आई डू, आई जस्ट क्लिक ऑन एस्केप। और ये थोड़े आपके मतलब जैसे बोलते हैं ना शॉर्टकट्स, तो ये शॉर्टकट्स बहुत आपको काम में आएंगे आपका टाइम सेव करने के लिए। मैंने यहाँ पे एस्केप दबाया और मैं ए दबा रहा हूँ, जैसे मैंने ए दबाया तो ऊपर एक सेल ऐड हो गया। ठीक है, अगर इसके नीचे मुझे सेल ऐड करना है तो आई विल प्रेस स्किप की एंड मैं बी दबाऊंगा, तो यहाँ पे नीचे एक सेल ऐड हो गया। दिस इज माय शॉर्टकट्स, लाइक दिस इज द शॉर्टकट्स ऑफ दिस जुपिटर नोटबुक विच आर इवन यूज्ड इन वीएस कोड। सो यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो वीएस कोड में आपको ऑटोमेटिक आपको हैंडी हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने स्किप दबाया। जब मैं इस यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे मैं जब हूँ तो ब्लू दिखा रहा है। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूं तो देखो यू कैन सी स्किप दबाने के बाद दिस इज जस्ट हाईलाइटिंग द बिग टर्मिनल। सो तो जब ये आप अंदर होते हो तो इट वर्क्स एज अ सेल टू एग्जीक्यूट द कोड। व्हेन यू प्रेस escape ना, यू कैन मैनिपुलेट द बिहेवियर ऑफ सेल इन द जुपिटर नोटबुक। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लो। उसके बाद तो ये हो गया, फिर आपको ये बता दिया जुपिटर नोटबुक में आप चाहे वो सब इसको मैनिपुलेट कर सकते हो। मैं जस्ट आपको एक्सप्लोर करने के लिए मैं बताता हूँ कि एक एनबी एक्सटेंशन करके है। क्या? एनबी एक्सटेंशन, तो उसको बोलते हैं नोटबुक एक्सटेंशन, एनबी एक्सटेंशन गाइस। अगर आपको टाइम है, आपको एक्सप्लोर करना है उसको बहुत प्रॉपर से, मतलब तो आप इसको एनबी एक्सटेंशन को ध्यान में रखो और उसको सिर्फ देखो कि एनबी एक्सटेंशन क्या है। हाँ, हाउ दिस एनबी एक्सटेंशन हेल्प यू गाइस टू मेक दिस जुपिटर नोटबुक वेरी लाइक वी कैन से इफेक्टिव, और जैसे कि उसको एक प्रॉपर वे से मैनेज किया हुआ नोटबुक अगर आपको बनाना है तो एनबी एक्सटेंशन, ये एक्चुअली आई एम यूजिंग माउस ना, वो मेरा पेन जो है, पेन टैब जो है वो रह गया है इसलिए, बट एनबी एक्सटेंशन मैं यहाँ पे आपको लिख के दूंगा। ठीक है, लेट मी राइट आउट हियर एनबी एक्सटेंशन, तो आपको इसको एक्सप्लोर करना है आपके साइड से। हाँ, एनबी एक्सटेंशन क्या होता है और इसको जुपिटर नोटबुक में कैसे यूज करते हैं, जस्ट स्पेंड सम टाइम, जस्ट एक 20 मिनट्स 30 मिनट्स, आई थिंक 30 मिनट्स आर इनफ, जस्ट आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, दिस इज लाइक आई हैव इंस्टॉल दिस जुपिटर नोटबुक विच इज वेरी ओल्ड वर्जन। जब भी मैं मतलब बहुत पहले एक कितने 4-5 साल 5-6 साल पहले जब ये जुपिटर नोटबुक की करता था, दैट इज ओल्ड वर्जन आई हैव। बट ये एनबी एक्सटेंशन जो है वो मेरे ऑफिस के लैपटॉप में है, जो हम प्रोफिशिएंट यूज करते हैं उसको जब भी कुछ रिपोर्ट्स और ईडीए की रिपोर्ट्स शेयर करनी होती है तो। ठीक है, देन गाइज ये सेल का आपको पता चल गया। मैं सेल पे आपको थोड़े थोड़े, मतलब अभी हमने पाइथन शुरू ही कर दिया है ना, तो उसका पाइथन का थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें आपको बताते जाऊंगा। फिर ये जुपिटर नोटबुक का बहुत सारा मतलब जितना चाहिए था हमने कवर कर लिया। अभी वी विल बी मूविंग टू द वीएस कोड। हाँ, हम वीएस कोड की तरफ हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जस्ट टू स्टार्ट लाइक साइड बाय साइड मैं आपको धीरे धीरे बराबर लेके जाऊंगा। सो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं लगने दूंगा। तो आगे बढ़ने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ अभी एक चीज, थोड़ा सा पाइथन का कोड, एकदम थोड़ा सा, जो लोग बहुत नए हैं ना उनके लिए। हाँ, और जो जिनको पता है ऑलरेडी तो यू गाइस जस्ट आपका एक रिवीजन हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। तो पाइथन का कोड मतलब जैसे आपने पीएचपी पे कोई काम किया होगा कोई लोगों ने, फिर आपका डॉट नेट फ्रेमवर्क होगा, जा जे 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 क्वेरी जावा, जो भी आप काम करते होंगे कोडिंग का, और जो भी स्टूडेंट्स लोग हैं आपको भी प्रोग्रामिंग का है ही बहुत मतलब नॉलेज। तो ये चीजें, दिस असाइनमेंट यू कैन इजीली लाइक अंडरस्टैंड ना। नेम इज इक्वल टू, अगर मैं नेम इज इक्वल टू कुछ बोलता हूँ तो व्हाट विल हैपन, राम, राम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक स्ट्रिंग वेरिएबल इसको असाइन हो जाएगा। तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द सिंटैक्स बेसिक सिंटैक्स फ्रॉम स्क्रैच फॉर पाइथन। ठीक है, एंड एनीवे ईच एंड एवरीथिंग regarding this python is not needed. I am making sure कि we will be covering those parts which are needed for machine learning. So our purpose is to learn python for machine learning. Okay, तो मशीन लर्निंग के लिए जितना भी पाइथन लगने वाला है मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम जस्ट असाइनिंग अ स्ट्रिंग वेरिएबल टू लाइक स्ट्रिंग वैल्यू टू दिस वेरिएबल। ठीक है, तो उसको अगर मैंने असाइन करने के बाद अगर एग्जीक्यूट करता हूं मैं कंट्रोल एंटर। ठीक है गाइस, मैंने कंट्रोल एंटर कर दिया। अभी मुझे इसको प्रिंट करना है तो व्हाट आई विल डू, प्रिंट में यूज करूंगा। बट इन शॉर्ट अगर आपको यहीं पे प्रिंट करके देखना है तो आप ये ऐसे भी कर सकते हो। नेम को अगर यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कंट्रोल एंटर करोगे तो राम प्रिंट हो जाएगा।
ठीक है गाइस। तो ऐसे ही आपके बाकी के वेरिएबल्स भी मैं आपको धीरे धीरे जस्ट ये स्ट्रिंग वेरिएबल बता दिया। फिर अगर आपको इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है, तो मतलब ये जस्ट इसलिए कि इसका सिंटैक्स आप ध्यान में रखो। मतलब अगर ये सी रहता, सी लैंग्वेज, तो हमको इंट स्पेसिफिकली बताना पड़ता है। अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं ना, तो मुझे बताना पड़ता है कि भाई ये जो भी स्टोर करेगा दैट इज अ इंटीजर वेरिएबल। तो जो मेमोरी में जो स्पेस अलोकेट होगी, तो इंटीजर वेरिएबल के लिए वो बाइट्स बीट्स आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये चीज है, यहाँ पे ऐसा सिंटैक्स है, आप डायरेक्टली ऐसे वेरिएबल्स उसको दे सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग दे दिया, मैंने बोला नहीं str करके। यहाँ पे मैंने इंट का वैल्यू असाइन किया, मैंने बोला नहीं इंट करके। इट इज टेकिंग इट। सो दिस इज एफिशिएंट, दिस इंजन इज एफिशिएंट, द पाइथन इंजन इज एफिशिएंट टू अंडरस्टैंड व्हाट वेरिएबल इट इज टेकिंग, ठीक है। तो अभी देखो मैंने 37 ले लिया, और मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा गाइस, तो प्रिंट के लिए आपको प्रिंट वो पता चल गया। उसके बाद प्रिंट के लिए मैं हमने वो देख लिया। अगर मैं ऐसे करूंगा गाइस, देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एज लेता हूँ और उसके नीचे मैं अगर नेम लेता हूँ, तो इस चीज इसमें क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे क्या प्रिंट होगा? यस गाइस, जस्ट फील फ्री टू ओपन अप, लाइक जस्ट आप गेस करना शुरू कर दीजिए अभी क्या नेम होगा प्रिंट इसमें। होगा। नेम। यस करेक्ट, नेम प्रिंट होगा गाइस। हाँ, एज प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इफ वी आर प्रिंटिंग इन दिस सेल ना, इन दिस फॉर्मेट, देन इट टेक्स द लास्ट वैल्यू। ये लास्ट लास्ट वाला। वाला प्रिंट करेगा, ठीक है गाइस। ये आप आपकी साइड से एक्सप्लोर एक्सप्लोर करना है इसको कि यार मैंने तो दो प्रिंट किए थे। चलो अभी एफिशिएंटली मुझे बताओ, अगर मुझे दो नहीं चाहिए प्रिंट करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? यस गाइस, एनी गेस क्या करूंगा मैं? तो हमें प्रिंट में डालना पड़ेगा ना। यस, अगर मैं इसको प्रिंट में डालूंगा गाइस, अदर गाइस यू आर अंडरस्टैंडिंग ना? अगर आपको लगता है भाई समझ में नहीं आ रहा, मुझे स्टॉप कर दीजिए, हाँ। क्योंकि इनिशियल स्टेज है, मैं थोड़ा यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली टाइम दे सकता हूँ, हाँ। जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे ना, तो उस टाइम पे ना अपना टाइम जो है, तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो इनिशियली आप मुझे यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हो, जो बंदे नए हैं, ठीक है। मैंने देखो क्या किया, प्रिंट किया, तो ये दिस प्रिंट नाउ। अगर आपको मल्टीपल प्रिंट करने हैं तो यू कैन डू इट इन दिस वे। कॉनकैट करके नहीं होगा? कॉनकैट करके होता है। उसके बाद हाँ देखो, अभी ऐसा भी एक उसका आप कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आपको आपने वन बाय वन किया था, अगर आप ऐसे करोगे ना, एज और नेम, देखो अगर मैं ऐसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आ जाएगा, देखो। दोनों आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये जस्ट दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स। So these एंड are the यू only the syntax, right? To यस करेक्ट print out the variable. करेक्ट करेक्ट, दिस इज जस्ट सिंटैक्स, जस्ट सिंटैक्स। देखो पहले मैंने वन बाय वन लाइन पे लिया था, तो एज प्रिंट नहीं हुआ था, सिर्फ Okay. नेम प्रिंट हुआ था। लेकिन मैंने एक ही लाइन में किया कॉमा देके, तो एज एंड नेम बोथ आर प्रिंटिंग ओवर हियर, ठीक है गाइस। फिर मैं And this variable declaration are similar to C language, right? Means यस यस वी कैन, बट we can say आई that. थिंक नो, फॉर सी, एज लाइक सो फार आई नो, सी के लिए ऐसा करना पड़ता है। देखो str Yes, yes, yes. नेम इज इक्वल टू, बट दिस इज एफिशिएंट कि आपको ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। सी के लिए इंट बताना पड़ता है, वो नहीं क्या str इंट, फिर वो Correct, correct, हाँ, correct. डेटा I टाइप got your डिक्लेयर point. करना पड़ता है हाँ, पहले। ऐसा डेटा टाइप डिक्लेयर करना। लेकिन पाइथन, एंड दैट्स व्हाई पाइथन इज वेरी प्रेफरेबल। हाँ, पाइथन मतलब मशीन लर्निंग के लिए इज वेरी एफिशिएंट लैंग्वेज। We can say it's loosely coupled language. यस Because of that, करेक्ट, we don't have to declare the राइट uh, राइट, data type. यस यस करेक्ट। अभी हम आ जाएंगे डेटा टाइप। यस, यू हैव मेंशन वेरी गुड थिंग, और उस डेटा टाइप को हम अभी एक्सप्लोर करेंगे इस वे से। तो गाइस मैंने देखो, हाँ अभी मैं एक काम करता हूँ, अभी ये डेटा टाइप को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, और दैट इज नथिंग बट द टाइप कास्टिंग बोलते हैं उसको, टाइप कास्टिंग। हाँ, तो टाइप कास्टिंग मतलब क्या बताए, दिस लैंग्वेज इज वेरी एफिशिएंट फॉर इन केस ऑफ टाइप कास्टिंग। हाँ, अगर देखो मैं यहाँ पे अगर मैं ऐसे बोलूंगा नेम इज इक्वल टू राम, तो मैंने लिया था ना। अगर मैं नेम इज इक्वल टू अगर ऐसा कर दूंगा ना 45, ठीक है, तो ये जब हम सी में अगर ये करेंगे तो एरर आएगा भाई, इसको तो मैंने स्ट्रिंग डिफाइन किया था, फिर ये इंटीजर वैल्यू क्यों दे रहा है? बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। देखो देखो कुछ एरर आया नहीं आया, तो उसने इंटरनली इंटरनली कर लिया ये सब चीज। अभी मैं यहाँ पे नेम प्रिंट करूंगा तो आपको राम नहीं आएगा, 45 आ जाएगा। लेकिन आप बोलोगे ऐसे कैसे, मतलब ये तो स्ट्रिंग था, फिर ये तो इसमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रिसेंटली जो भी उसको असाइन करोगे ना, तो वो ले लेगा। लेकिन उसमें भी मैं आपको आगे थोड़ा थोड़ा इसको बताते जाऊंगा। अभी इसको मैं टाइप कास्टिंग का एक बताता हूँ। आप अगर इसको आप बोलोगे टाइप, तो इट विल, मगर ये कैसा होता है ना, जैसे आप प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ोगे, तो अगर आपको आगे जाके पता चला यार मैंने ये वेरिएबल लिया था लेकिन इसका क्या टाइप है, तो यू कैन प्रिंट द टाइप लाइक दिस नेम। अगर मैं टाइप और नेम बोलूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा इंट, समझ रहे हो? यहाँ पे राम, अगर मैं यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूट करूंगा, और यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा इसका टाइप, तो नाउ दिस टाइम इट विल बी अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हो जाएगा, देखो स्ट्रिंग, ठीक है। तो देखो दिस काइंड ऑफ टाइप कास्टिंग वर्क्स हियर। मैं अभी यहाँ पे नेम बोल रहा हूँ, एंड इट विल टेल मी, ये यहाँ हो गया स्ट्रिंग।
तो ठीक है, तो दिस ये ओवरराइड भी ऐसे कर लेता है। ठीक है, तो गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो हो गया, देखो एसटीआर कर लिया, इंटीजर कर लिया, फ्लोट भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देख लेंगे तो वीएस कोड में ये चीज नहीं देखेंगे, बिकॉज जस्ट आई विल गो अहेड विद हाउ वीएस कोड वर्क, लेकिन वीएस कोड में ये नहीं देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम अगर देख रहे हैं तो अगर फॉर एग्जाम्पल हाँ मैं यहाँ पे ही लेता हूँ, लेट्स से एक वैर फ्लोट करके ले लेता हूँ, वैर फ्लोट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं 3.5 सॉरी 4.5 अगर डालूंगा और उसका अगर आप टाइप देखोगे तो यहाँ पे वो बोल देगा भाई दिस इज फ्लोट। ठीक है, यहाँ पे तो आपको समझ गया ये चीज, तो ये आगे जाके अपने को जब एल्गोरिदम्स वगैरह उस टाइप पे आपको ये काम में आएगा। ठीक है, तो गाइज ये ऐसा होता है, सॉरी यहाँ पे आप लिख सकते हो वैर फ्लोट, मैं अगर हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा इसको एक्सप्लोर करो कि कैसे बुलियन अगर देना है तो दिस इज होमवर्क फॉर यू, बुलियन कैसे देते हैं ट्रू फॉल्स, वो आप एक बार देख लेना और उसका टाइप भी देख लेना, टाइप देख लेना। ठीक है, अभी तक हमने ये प्रिंट ऐसे इस फॉर्मेट में देखा गाइस, कौन से वाले फॉर्मेट में, ऐसा प्रिंट, लेकिन द ब्यूटी कि आप प्रिंट अलग अलग वे से यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐसे बोलूंगा these are the variables we have seen, हाँ, और यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे कॉमा देके ये सब प्रिंट करूंगा, देखो नेम, नेम डाल दिया, उसके बाद मैंने डाल दिया वैर फ्लोट, तो प्रिंट हो जाएगा उसके जैसा। ठीक है, देखो, ठीक है, देखो राम, हाँ 4.5, लेकिन कैसे ना, अगर आपको ऐसे चाहिए भाई कि यार मुझे बीच में ये चाहिए था, यहाँ पे नेम यहाँ पे चाहिए था, फ्लोट बाद में चाहिए था, तो आप क्या करोगे सिंपली, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये मैं जस्ट बता रहा हूँ लेकिन प्रैक्टिकली आपको करना है ये सब चीजें। हाँ, मैं अभी यहाँ पे ना ऐसे एफ दबा दूंगा, एफ, तो एफ इज फॉर फॉर्मेटिंग। तो गाइस एफ मैं जब बोलता हूं ना तो इट इज फॉर फॉर्मेटिंग, अगर मैं फॉर्मेटिंग बोल के यहाँ पे ब्रैकेट लूंगा ऐसा, ठीक है, ब्रैकेट, और यहाँ पे आपको ये नेम डालूंगा, आप ये जस्ट समझ लीजिए, मैं मतलब जस्ट क्योंकि फिर उसका नाम वगैरह ये सब, मैं जस्ट एक वेरिएबल कैसे कॉल करते हैं बीच में लेके वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये मैं इसको भी उठा लेता हूँ कंट्रोल एक्स, और इधर जाके मैं यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट में करली ब्रेस में मैं यहाँ पे उसका ऐसे वैल्यू और कंट्रोल एंटर दबाता हूँ, तो आप समझ रहे हो, देखो इसका वैल्यू यहाँ पे, इसका वैल्यू यहाँ पे, आप इसको एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है गाइस, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, हाँ, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। अभी एक काम करता हूँ, ये हेलो जुपिटर, हेलो, सर, यहाँ पर ना आपने ऊपर मतलब यहाँ आउटपुट क्या आ रहा है, हाँ राम आ रहा है, लेकिन आपने असाइन करते समय लास्ट में हाँ 45 नंबर असाइन किया था, तो वो समझ नहीं है मतलब ओके ओके, इधर मतलब राम कैसे आ गया हाँ हाँ, यहाँ पे ना एक्चुअली मैंने क्या किया, यहाँ पे गया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया इस सेल को, तो राइट नाउ इट इज कैरिंग द राम इनटू इट्स वैल्यू। अगर मैं एक काम करता हूँ, देखो यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और मैं इसको कंट्रोल एंटर एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए हाँ एग्जीक्यूट हो गया, देखो 19 आ गया यहाँ पे, 19 ना, मतलब रिसेंटली ये एग्जीक्यूट हुआ है ये सेल। अगर मैं यहाँ पे अभी जाऊंगा ना तो उसमें है आपका क्या था 45 ना, तो यस सर। देखो 45 आ गया, देखो। ओके 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 हाँ एक्चुअली वो क्या था, उसने लास्ट टाइम मैंने ये इसको रन किया था ना, तो ओके ओके जस्ट ओके बिकॉज कि मैं इसका टाइप आपको बता रहा था स्ट्रिंग, तो उसकी वजह हाँ, से उसने उस वैल्यू को होल्ड किया था। या एंड इवन यू कैन सी द दिस नंबर्स, सी 21 इज आवर लास्ट एग्जीक्यूशन, सी यहाँ पे या देखो 10 ना, ओके तो 21 इज आवर लास्ट एग्जीक्यूशन। ओके ओके ओके, गॉट इट सर, थैंक हाँ यू। हाँ, तो अभी एक काम करेंगे, ये इसको आप है ना प्रैक्टिकली एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है, जुपिटर नोटबुक को। अभी हम जो लाइट वेट प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ गया जुपिटर नोटबुक कमांड में कैसे इंस्टॉलेशन होने के बाद जुपिटर नोटबुक डालने का, ये ऐसे ओपन हो जाएगा ब्राउजर पे आपके, फिर उसको आप करो, ये सब चीजें करो प्रैक्टिकली। ठीक है, जस्ट हैंड्स ऑन, ये थोड़ा सा ठीक ठाक करो इसको। तो भाई ये दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, आप यहाँ से फिर आगे मैं बाद में जब प्रॉपर अपना पाइथन का मैं टाइप कास्टिंग, इंटरनल एक्सटर्नल टाइप का सब बताऊंगा, फिर से हाँ रिकॉल करूंगा, अपने सब जो भी सक्सीडिंग सेशंस रहेंगे ना उसमें सब चीजें होगी प्रॉपर से। ये जस्ट टुडेज पर्पज इज कि ये चीज है जो लगने वाली है, अगर आपको चाहिए तो देर इज अल्टरनेटिव, अगर चलो किसी कारणवश आपसे जुपिटर नोटबुक का कुछ प्रॉब्लम ही आ रहा है, आपके सिस्टम में हो ही नहीं रहा, तो फिर हम हमारे पास दूसरा आता है एक वीएस कोड, मैं वीएस कोड बताता हूँ फिर आपको। वीएस कोड देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, वीएस कोड, आई एम ओपनिंग इट। तो गाइस मोस्ट ऑफ आवर वर्क विल बी हियर ऑन वीएस कोड। ठीक है, तो वीएस कोड इंस्टॉलेशन वगैरह इतना नहीं है, और मैंने एक्चुअली कैसा है ना, मुझे फिर से ये फिर अनइंस्टॉल करना पड़ता, फिर से वो सेटअप करना पड़ता।